Hello everyone. Today's topic is reason, faith, and revelation in the philosophy of religion. तर्क, विश्वास और रहस्योद्घाटन. Traditionally, faith and reason have each been considered to be the source of justification for religious belief. Reason uh, The reason is to actively use logic by drawing inference from new or existing knowledge to discover the truth. हम रीज़न किस चीज़ में यूज़ करते हैं? तर्क, सत्यों को खोजने के लिए, उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए. It is strongly related to unique human activity such as philosophy, science, language, mathematics, and art, and is often seen as a distinctive human skill. The reason is linked to the activity of thinking and cognition. सोचने और ज्ञान प्राप्त करने की विधि से कहीं ना कहीं तर्क का संबंध है. Reason, generally understood as the principle for the methodological inquiry, whether intellectual, moral, aesthetic, or religious. Religion, each religion is based on some holy scripture like Veda, Bhagavad Gita, Guru Granth Sahib, Quran, Bible, Shastra, etc. For explaining the meaning of these scriptures, religion is required. Reason is helpful to get religious knowledge. The point is, if you want to understand or you want to grasp the knowledge of some object, it is just because reason. क्योंकि जब तक तर्क नहीं होगा हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी. जब तक हमें कारण नहीं पता चलेगा, तर्क नहीं देंगे, युक्ति नहीं देंगे, कोई भी चीज़ हमें समझ में नहीं आएगी. दूसरा है रेवलेशन. रेवलेशन क्या है? There are different source of religious knowledge and revelation is one such source. Revelation can either refer to the process of revealing something or to the content that is revealed. कि या तो रिवील करना मतलब कुछ व्यक्त करना, कुछ बताना, या तो कुछ बताने की एक विधि, या तो वो बताया गया, व्यक्त किया गया कंटेंट. दोनों ही मतलब हो सकते हैं रेवलेशन के. Revelation can either refer to the process of revealing something or to content that is revealed, as I said. So, revelation means bringing into light what was hidden before. कि उस चीज़ को बताना जो पहले छुपा हुआ है. रेवलेशन का मतलब है कि उस चीज़ को, उस ज्ञान को प्रकट करना जो पहले से नहीं है. इट मीन्स डिस्क्लोजर. Revelation primarily means a medium through which men are able to know the divine entity. एक ऐसे माध्यम की तरह काम करता है जिसके द्वारा जो दैविक सत्ता है या जो आध्यात्मिक शक्ति है उसे समझा जा सके. Through revelation, men come to know God and the body of truth. A religious person believes that God himself gives knowledge to human being about himself and the subject related to him. Such knowledge is called श्रुति और रेवलेशन. ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर खुद अपने आप का जो ज्ञान है वो देते हैं और वो जिस माध्यम से देते हैं उसे श्रुति कहा जाता है. So religious people believe that God gives this knowledge through certain individuals like prophet, saint, sages, etc. है ना. तभी तो आप देखो जब हम मंदिर जाते हैं तो हम ज़्यादातर पंडितों से कहते हैं कि भाई हमारी अर्जी कीजिएगा, हमारी भगवान को हमारा मैसेज दीजिएगा, है ना. तो ऐसा माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं एक रिलेशन बनाते हैं हमारे और गॉड के बीच.
और स्क्रिप्चर्स को समझाने के लिए भी काफ़ी बार कहा जाता है कि ब्राह्मण पंडित या जो स्कॉलर्स हैं उनके थ्रू आप समझ सकते हैं. दिस नॉलेज द नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर इज इनफॉलेबल बिकॉज इट इज़ गिवन बाय गॉड. ऐसा कहा जाता है कि जो वेद शास्त्र इत्यादि का जो ज्ञान है उसमें एरर नहीं है, उसमें कोई आप संदेह नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वो गॉड ने दिया है. सो इट इज नाइदर पॉसिबल टू बी टेस्टेड बाय एक्सपीरियंस नॉर बाय रीजन. किसी भी तरीके से आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते. श्रुति इज और रेवलेशन इज सेल्फ प्रूव्ड. That is why a religious person never doubt the authenticity of the knowledge of revelation. The existence of God or any other divine power, its form and quality, its relationship with man and the world, the existence of soul, its immortality of the goal of human life, and the means to achieve. ऑल आर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ रेवलेशन. यानी रेवलेशन में ये सब बताया गया है कि ईश्वर की सत्ता कैसे है, उसके रूप क्या है, उसके गुण क्या है, मानव और संसार के साथ उसका संबंध क्या है, आत्मा का अस्तित्व कैसे है, उसकी अमरता का क्या कॉन्सेप्ट है, मानव जीवन के लक्ष्य क्या हैं और उन लक्ष्य को हम कैसे पा सकते हैं. जैसे कि मानव जीवन का लक्ष्य पुरुषार्थ वेदों में और शास्त्रों में बताया गया है. इसकी वीडियो मैं पहले बना भी चुकी हूँ, आप वहाँ से इसको रेफर कर सकते हैं. कि जैसे अर्थ धर्म काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं. इस तरह से रेवलेशन में हम उसका कोई एक टॉपिक नहीं है. आप ये नहीं कह सकते कि उसका एक सब्जेक्ट है, नहीं. उसकी जो विषय वस्तु है वो बहुत विस्तारित है, बहुत ब्रॉड है. नाउ द प्रपोजिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेवलेशन. Propositional understanding of revelation. According to this view, the content of revelation is the body of truth expressed in a statement or proposition. तो अब वो कहते हैं कि रेवलेशन जो है जहाँ सत्य बताए गए हैं उसके अंदर सत्यों का एक ऐसा आप समूह कह लो या सत्यों की एक ऐसी बॉडी है जिसको स्टेटमेंट और प्रपोजिशन के फॉर्म में बताया गया है. अब स्टेटमेंट और प्रपोजिशन क्या है, अगर इसको समझने के लिए आप मेरा लॉजिक का वीडियो फॉलो कर सकते हैं जिसमें सेंटेंस एंड प्रपोजिशन में डिफरेंस बताया गया है. और वहाँ ज़्यादातर जैसे कि कहा है कि रेवलेशन क्या है कि सत्य के बारे में बताता है ना. स्टेटमेंट और प्रपोजिशन तो उसमें भी हम पढ़ते हैं, लॉजिक में भी मैंने बताया था कि प्रपोजिशन क्या है, एक तर्क वाक्य है. जो हर वाक्य तर्क वाक्य नहीं होता, जैसे क्वेश्चन मार्क है या जैसे इम्परेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ये सब प्रपोजिशन नहीं होते. प्रपोजिशन क्या होता है, अफर्मेटिव, फैक्चुअल, इंफॉर्मेटिव, ऐसे स्टेटमेंट को प्रपोजिशन कहा जाता है. और रेवलेशन में हमें ऐसे ही स्टेटमेंट मिलते हैं, इसलिए उसका प्रपोजिशनल अंडरस्टैंडिंग है. In the word of older Catholic encyclopedia, revelation may be defined as communication of some truth by God, which are beyond the ordinary course of nature. जिन्हें हम ऑर्डिनरी तरीके से नहीं जान सकते, अपने लिमिटेड परसेप्शन के थ्रू नहीं जान सकते, वो हमें रेवलेशन के थ्रू पता चलता है. गॉड ने जो सत्य बताए हैं, गॉड के साथ हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो रेवलेशन के थ्रू होता है. आगे the idea behind propositional revelation is that God has revealed himself in a number of proposition or truth that humanity can fully rely upon. वो कहते हैं कि गॉड रेवलेशन में अगर ये बताया गया है कि गॉड अपने आप को रिवील करता है, व्यक्त करता है, तो उसके लिए बहुत सारी प्रपोजिशंस को लिखा गया है
जिनके थ्रू हमें उसकी नॉलेज मिलती है और हम उन पे पूरी तरह से विश्वास करते हैं। स्टेटमेंट अबाउट गॉड्स पर्सनल नेचर, हिज प्लान एंड हिज माइटी एक्ट इन हिस्ट्री आर ऑफन गिवन द फॉर्म ऑफ प्रपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल द बाइबल से दैट गॉड डज नॉट चेंज। एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक हमें सत्य पता चल रहा है, ये आप एक्सपीरियंस के थ्रू नहीं जान सकते। देन नेचुरल थियोलॉजी एंड रिवील्ड थियोलॉजी। ये क्या है? नेचुरल थियोलॉजी एंड रिवील्ड थियोलॉजी। द प्रपोजिशनल थ्योरी ऑफ रेवलेशन हैज ऑलवेज बीन accompanied by the distinction between नेचुरल एंड रिवील्ड थियोलॉजी। जब हम रेवलेशन का प्रपोजिशनल व्यू पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये दो डिस्टिंक्शन मिलते हैं। दिस डिस्टिंक्शन हैज बीन ऑलमोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय Christian theologians of all tradition. Natural theology was held to consist of all those theological truths that can be worked out by the unaided human intellect. अब यानी कि अनएड मीन्स होता है बेबस, कहने का मतलब कि ह्यूमन इंटेलेक्ट उसे नहीं समझ सकती। फॉर एग्जाम्पल द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और द एट्रीब्यूट ऑफ गॉड or the immortality of the soul. On the other side, revealed theology was held to consist of those further truths that are not accessible to human reason and can be known to us only if they are specially revealed by God. पहली बात तो हम अपने रीज़न के थ्रू उसे नहीं समझ सकते हैं और वो हमें उसकी जानकारी केवल तभी होती है जब ईश्वर खुद ही उसके बारे में कुछ बताए या उस ट्रुथ को रिवील करे, तभी से रिवील्ड थियोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी, है ना, जैसे कि कहते हैं ना भगवान त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति का जो सिद्धांत है वो हमें ईश्वर खुद ही आके बताता है। देन नॉन प्रपोजिशनल व्यू ऑफ रेवलेशन। अभी तो जो हमने पढ़ा वो प्रपोजिशनल की सारे जितने सत्य दिए गए हैं रेवलेशन में, है ना, वो प्रपोजिशन फॉर्म में दिए गए। अब नॉन प्रपोजिशनल व्यू क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस व्यू द कंटेंट ऑफ रेवलेशन इज नॉट अ सेट ऑफ ट्रूथ, is not a set of truth about God, but rather coming of God into realm of human experience। यानी कि वो सिर्फ ट्रुथ नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे एक्सपीरियंस से भी जुड़ा हुआ है। रिलीजियस प्रोपोजिशन आर नॉट रिवील्ड बट रिप्रेजेंट ह्यूमन एफर्ट टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवील्ड फिनोमिना। कि जो रेवलेशन में जो बताया गया है उससे और अच्छे से समझना, वो हम कैसे समझ पाएंगे? हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू समझ पाएंगे। दिस नॉन प्रपोजिशनल कंसेप्शन ऑफ रेवलेशन इज कनेक्टेड विद द पर्सनल कैरेक्टर ऑफ गॉड एंड द डिवाइन ह्यूमन पर्सनल रिलेशनशिप। डिवाइन ह्यूमन पर्सनल रिलेशनशिप यानी भगवान और मनुष्य का जो आपसी संबंध है वो हमें इस सिद्धांत के द्वारा पता चलता है। इसका मतलब ये है कि देखिए प्रपोजिशनल व्यू में हम सिर्फ रेवलेशन की नॉलेज गेन करते हैं, लेकिन नॉन प्रपोजिशनल में हम उस नॉलेज को जानने के बाद उस नॉलेज के आधार पर हम ईश्वर से अपना संबंध भी बनाते हैं। So we are totally dependent upon God because we are totally dependent upon God as a giver not only for our existence but also our highest good। हम ईश्वर पर केवल अपने अस्तित्व के लिए डिपेंडेंट नहीं हैं बल्कि हाईएस्ट गुड के लिए भी डिपेंडेंट हैं। It encourage the I or the relationship with God, मतलब मेरी और आपकी जो ईश्वर की जो रिलेशनशिप है वो इसे इंकरेज करता है। ये है रेवलेशन। अब फेथ कैसे बनता है? फेथ इन्वॉल्व्स अ स्टेंस टुवर्ड्स समथिंग क्लेम दैट इज नॉट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय रीजन, जिसे हम रीजन के थ्रू नहीं जान सकते, जिसे हम तर्क के द्वारा नहीं जान सकते, उसे हम फेथ के द्वारा जान सकते हैं। It is ordinarily
understood to involve an act of will or the commitment on the part, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये नीचे छिप गया है, इसके आगे है on the part of the believer, on the part of the believer. So it is ordinarily understood to involve an act of will and the commitment on the part of the believer. जो faith है, पहली बात तो believer की उसमें अपनी इच्छा होनी चाहिए. कोई जबरदस्ती आपके मन में ईश्वर के प्रति faith को नहीं उजागर कर सकता, नहीं बना सकता, है ना. उसका एक कमिटमेंट होता है कि हाँ, ये तभी तो मैंने कहा कि ये एक पर्सनल रिलेशनशिप को क्रिएट करता है. आपका और ईश्वर का जो पर्सनल रिलेशनशिप है किस पे टिका होता है? फेथ पे. सो फर्दर, religious faith involves a belief that makes either an implicit or explicit reference to a transcendent source. The basis for a person's faith usually is understood to come from the authority of revelation. कि रेवलेशन की अथॉरिटी के आधार पर ही हमारा फेथ बनता है, क्योंकि जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी तब तक हमारा किसी पर भी फेथ नहीं बन सकता. सो द बेसिस ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ रेवलेशन इज द फेथ इन गॉड ऑफ दोज पीपल हु बिलीव दिस नॉलेज टू बी कंप्लीटली ऑथेंटिक एंड अनक्वेश्चनेबली ट्रू. कि जो लोग, जो फेथ उनके लिए होता है जो ये विश्वास करते हैं कि रेवलेशन से हमें जो ज्ञान मिल रहा है वो पूरी तरीके से प्रमाणिक है और उसमें संदेह नहीं किया जा सकता. सो द आइडिया ऑफ अ फेथलेस डिवोटी सीम्स सेल्फ डिस्ट्रक्टिव. क्योंकि अगर एक डिवोटी फेथ नहीं रखेगा तो कहीं ना कहीं वो अपना ही नुकसान कर लेगा. क्यों? क्योंकि ईश्वर से उसका जो संबंध है वो सिर्फ फेथ पर ही टिका हुआ है. The general characteristic of faith can be expressed by its definition or explanation. That is, faith is the firm belief of a man in some kind, ideal, value, person, statement, and divine power, which he accepts completely even in the absence of एविडेंस. यानी कोई प्रूफ ना होने के बाद भी, कहने का मतलब हम भगवान को अपनी सेंसेस के थ्रू नहीं देख सकते. हम आवर सेंसेस इज वेरी लिमिटेड टू परसीव द हायर रियलिटी और द हायर बीइंग. उस गॉड को परसीव करने के लिए हमारी जो सेंसेस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं. सो एविडेंस के अभाव में भी फेथ बनता है. We don't have any reliable argument towards it. हम फेथ को प्रूफ करने के लिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते. Therefore, we can also call faith as non-rational mood. For example, 2 and 2 make 4. Earth revolves around the sun. There are 12 months in a year. The word faith is not used in these subjects because all these are dependent ऑन सर्टन प्रूफ, है ना. कि कहने का मतलब कि हम बोलें कि 2 + 2 = 4, है ना, तो ये तो किसी ना किसी प्रूफ पर डिपेंडेंट है. बट वी टॉक ऑफ फेथ ओनली अबाउट सच थिंग्स विच कैन नॉट बी प्रूवेबल. जिससे प्रूफ नहीं किया जा सकता उसके बारे में हम फेथ को आधार बनाकर बात कर सकते हैं. वी कैन नेवर गेट नॉलेज बाय रीजन रिगार्डिंग दैट which is the subject of our faith. That is why Kant has said in his famous book Critique of Pure Reason that God's soul and free will cannot be subject of our knowledge. It is only a subject based on faith. Faith was defined by Vatican Council of 1870 as a supernatural virtue, whereby, inspired and assisted by the grace of God, we believe that the thing that He has revealed are true. ये हम बिलीव करते हैं कि जो भी रेवलेशन में या रिवील किया गया है वो क्या है,
वो गॉड की कृपा से है, गॉड की वजह से है, और इसलिए जो फेथ है वो एक सुपर नेचुरल वर्च्यू है। क्योंकि हम सुपर नेचुरल पावर ही तो पे फेथ रख रहे हैं, तो वो वर्च्यू भी क्या होगा, वो सुपर नेचुरल होगा। देन फेथ एंड बिलीव। For example, we can say he believes in God or he has faith in God. There are two sentences. He believes in God and he has faith in God. Thus, faith and belief seems to be synonymous with each other. अगर हम इस तरह से यूज कर रहे हैं तो ये हमें एक दूसरे के पर्यायवाची लग रहे हैं कि ट्रस्ट, बिलीव एंड फेथ ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बट in every context, these two words cannot be used synonymously. Like, I believe the Premchand is the author of Godan. Here, we cannot use the word faith. We cannot say the I have faith that Premchand is the author of Godan. है ना, वो faith नहीं है, वो belief है. So, and then the next feature of faith is that is faith is subjective, व्यक्तिनिष्ठ, नॉट पब्लिक और ऑब्जेक्टिव। अब इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। फेथ इज सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव। सेंट ऑगस्टाइन इन द 5th century AD distinguished between फेडा क्रेडिटर that is faith which is believed and फेडा creditors faith by which it is believed। ये दो टर्म हैं। अब बहुत छोटा सा डिफरेंस है अगर आप इसको समझेंगे तो। मेनी थियोलॉजिशियन रेफर टू दिस एस्पेक्ट ऑफ फेथ एज ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। इसको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बीच डिवाइड कर दिया गया है। इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव faith refers to the objective body of revelation and tradition. This external object of our faith, divine revelation, is handed down to us by the church and is expressed by our creed, according to St. Augustine. कि क्या है ऑब्जेक्टिव फेथ, क्या है कि ये जो हमें रेवलेशन दिया गया है ना, ये जो ट्रेडिशन के थ्रू हमें रेवलेशन दिया गया है, इस पर सब विश्वास करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव फेथ है कि इस पे सबको फेथ है। बट सब्जेक्टिव फेथ क्या है? सब्जेक्टिव फेथ रेफर्स टू द मीन्स बाय विच वी कम टू पर्सनली ग्रैस्प द रियलिटी दैट आर एक्सप्रेस्ड बाय डिपॉजिट ऑफ फेथ। लेकिन सब्जेक्टिव फेथ क्या है कि पर्सनली हम कैसे उसको ग्रैस्प कर रहे हैं, कैसे उसको समझ रहे हैं, वो आपका दैट इज सब्जेक्टिव साइड ऑफ फेथ। ये दो डिवीजन है। एंड दिस एस्पेक्ट ऑफ फेथ रेफर टू द कॉन्क्रीट पर्सनल एनकाउंटर बिटवीन each one of us and God. This faith is needed necessary for salvation. Faith is a personal adherence of a man to God who reveals himself. It involves then the intellectual and the will to the self-revelation God has made through his deed and work. Objective faith is to believe the creed we process. हम एक विश्वास करते हैं कि जो हमें क्रीड वी प्रोफेस, यानी जो सिखाया गया है, जो सब्जेक्टिव तरीके से हमें ऑब्जेक्टिव तरीके से जो बताया गया है ना। फिर सब्जेक्टिव फेथ क्या है? सब्जेक्टिव फेथ इज टू बिलीव इट बिकॉज गॉड हैज शोन अस हिज लव एंड मर्सी एंड वी हैव एक्सपीरियंस इट डायरेक्टली इन आवर लाइव्स। तो in short, the objective faith is external and subjective faith is internal। कि ऑब्जेक्टिव फेथ बाहर की चीज़ों से बन रहा है, जो रेवलेशन है उनके थ्रू, या जो संघ है जो हमें समझाते हैं उनके थ्रू ये। लेकिन सब्जेक्टिव फेथ कैसे बनता है, वो आपका एक इनर पार्ट है। हाँ, फेथ रिफ्लेक्ट्स द पर्सनैलिटी ऑफ द believer. That's why I'm saying the faith reflects the personality of the believer.
So the word subjective has come to imply overly emotional, arbitrary, and unreliable knowledge. And the one more characteristic of faith is that, as I said, it reflects the personality of believer. It becomes an integral part of life. Man becomes very sensitive regarding faith. If for some reason he must abandon his faith, then he suffers mental pain. The breaking of the faith of devotee means the breaking of his whole personality. Now, criticism. First criticism, religious truths are related to a view of the Bible. Religious truths were revealed first through the prophet, then more fully and completely through Christ and then apostles, and are now recorded in the scripture. Thus, the Bible is not merely written by a human and therefore anonymous book. तो ऐसा कहा जाता है कि जो रिलीजियस ट्रूथ हैं वो क्या है, बाइबल के विचारों से संबंधित हैं या उनसे जुड़े हुए हैं. अब जो रिलीजियस ट्रूथ हैं दैट वाज रिवील्ड फर्स्ट थ्रू प्रॉफिट देन क्राइस्ट, जो कहते हैं ना गॉड ऑफ मैसेंजर, है ना, और या जो उनसे प्रेरित हैं उन्होंने लिखे हैं या फिर समझाए हैं, फिर उन्हें स्क्रिप्चर में रिकॉर्ड किया गया है. तो इस तरह से वो किसी एक ह्यूमन के थ्रू तो नहीं लिखे गए, वो केवल, है ना, या फिर ये भी नहीं कह सकते कि वो सिर्फ मानव ही हैं, क्योंकि कई बार तो कहा जाता है कि गॉड खुद अपने दूध भेजते हैं. तो ये बहुत सारी जो संभावनाएं हैं वो हमारे मन में डाउट पैदा कर देती हैं और इसलिए कहा गया है कि वो इरेनियस हैं. सेकेंड, सम थियोलॉजिशियन क्रिटिसाइज ऑफ प्रपोजिशनल व्यू ऑफ रेवलेशन, and the critique argument goes something like this: if there is propositional revelation, it is founded in the Bible. If there is propositional revelation in the Bible, then it is communicated through literal language that straightforward express divinely revealed proposition. And since the Bible often uses metaphor and narratives rather than literal language, so moreover the Bible contains problematic claim and view. So, hence the Bible does not contain propositional revelation. Hence there is no propositional revelation. तो ऐसा कहा जाता है कि तर्क क्या दिया गया है कि जो प्रपोजिशनल रेवलेशन है वो बाइबल में पाए गए. अब अगर वो बाइबल में पाए गए हैं प्रपोजिशनल रेवलेशन, तो इट इज कम्युनिकेटेड थ्रू लिटरल लैंग्वेज, क्योंकि वो क्या होने चाहिए, स्टेटमेंट आपके फैक्चुअल होने चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेस डिवाइनली रिवील्ड प्रपोजिशन. लेकिन ऐसा नहीं है, बाइबल में बहुत सारे मेटाफर्स हैं, नरेटिव्स हैं, है ना, वो सिर्फ लिटरल लैंग्वेज के थ्रू नहीं लिखा गया. इसका मतलब कि उसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक क्लेम और व्यूज हैं. देन तो निष्कर्ष तो यही निकलता है कि बाइबल डज नॉट कंटेन प्रपोजिशनल रेवलेशन, क्योंकि प्रपोजिशनल क्या है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो सिर्फ क्या करेंगे, फैक्चुअल स्टेटमेंट हो, इंफॉर्मेटिव हो, अफर्मेटिव हो, इस तरह के होने चाहिए. और अगर ऐसा नहीं है सो देयर इज नो प्रपोजिशनल रेवलेशन. थर्ड, people who believe in the Shruti or the revelation, they accept the existence of God or other supernatural power based on faith without any proof. Now, if a person does not believe in any supernatural entity, then there can be no meaning and importance of Shruti knowledge for him. अगर वो कहते हैं कि भाई देखिए लोग क्या करते हैं, श्रुति में बिलीव कर रहे हैं और इसलिए वो गॉड का एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट करते हैं, सुपर नेचुरल पावर का, बिना किसी प्रूफ के. लेकिन अगर कोई पर्सन किसी गॉड या किसी सुपर नेचुरल एंटिटी में विश्वास ही नहीं रखता तो उसके लिए तो फिर ये श्रुति मीनिंगलेस हो गई, है ना. तो इसके लिए क्या जस्टिफिकेशन है कि क्या गॉड है नहीं, या जो सिर्फ फेथ रखते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए गॉड एग्जिस्ट करता है, या जो ये रेवलेशन है ये कुछ लिमिटेड लोगों के लिए ही और रिलीजियस पर्सन के लिए ही यूजफुल है, बाकी के लिए नहीं, एक्सेट्रा. Fourth, the supporter of the Shruti or the revelation is supporters, according to the supporters of Shruti, uh, uh, the revelation is self-evident.
यहाँ पे थोड़ी सी लाइन गलत हो गई है. द सपोर्टर्स ऑफ श्रुति डोंट accept the need of any kind of proof for its authenticity, considering it as self evident. है ना. तो जो मानते हैं कि श्रुति सेल्फ एविडेंट है, तो सपोर्टर ये मानते हैं कि उसके लिए किसी भी तरीके का क्या जरूरी नहीं है, प्रूफ जरूरी नहीं है. तो सपोर्टर ऑफ श्रुति एक्सेप्ट that Shruti is self-evident. Shruti is self-evident, but we can never know whether the Shruti is the voice of God. अगर कोई ये मानता है कि श्रुति सेल्फ एविडेंट है, वो ईश्वर की आवाज़ है, इसलिए उसको किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई नहीं जानता कि क्या वाकई में वो ईश्वर की आवाज़ है या वो इंसानों ने लिखी है. सो इफ it is accepted that God has created these scripture through prophet or saint, even there is no means to prove it. अगर ये भी कहा जाए कि भगवान ने किसी को मीडियम बनाकर वो सब लिखवाया है, तो भी ये प्रूफ नहीं होता कि वो गॉड के द्वारा बताया गया ट्रुथ है. Then last, many times there are contradiction and differences in scripture, such as differences regarding the nature of God and the soul and the creation of the world. Similarly, there is a difference between the goal of human life and the means to achieve it. As the follower of theistic religion, don't doubt their authenticity, considering their respective scripture as the voice of God. In such a situation, it becomes impossible for an unbiased thinker to decide which principle of scripture should be considered appropriate. तो अगर ये कहते हैं कि ये ईश्वर के वाणी है, ये ईश्वर के द्वारा बताया गया है, तो फिर क्यों उसमें इतना डिफरेंस है लोग. क्योंकि देखिए, जैसे कि हम बात करें द गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो उसमें 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं. तो कई लोग 3 मानते हैं, है ना, कई लोग 2 मानते हैं, कई 1. हर फिलॉसफी का अलग अलग है, कोई 2 मानता है, कोई 3, कोई 4, है ना. तो जैसे त्रिवर्ग और चतुर्वर्ग का भी जो डिफ्रेंशिएशन किया गया है, तो अगर अलग अलग डिफ्रेंशिएशन किया गया है और कई सेंटेंस उसमें कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा सही है. इस तरह रेवलेशन के रिगार्डिंग ये क्रिटिसिज्म है. और रेवलेशन के रिगार्डिंग इसलिए है क्योंकि जब तक रेवलेशन में ट्रस्ट नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा, फेथ नहीं आएगा. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इनके आपसी संबंध को समझें, रीजन, रेवलेशन एंड फेथ. थैंक यू.